Hello everyone, welcome back again to Pharmacology by MTT. Yeah, that's me, Dr. Mangesh Kumar Tripathi, to again the lecture of autocoids. And in this lecture, we will be dealing with the next autocoid, which is called as the lipid autocoids. Now guys, everyone knows in the previous three lectures, we have done the first autocoid, that is called as the amine autocoid, जिसमें हिस्टामिन आए थे और सेरोटोनिन आए थे. तो हमारे पहले तीन लेक्चर में हमने वो कंप्लीट कर लिया है. Now today we'll start with the next very important autocoid, and that is called as the lipid autocoid. We will study the lipid autocoids in the following points. First, we'll start with the synthesis of lipid autocoid. See the names of the lipid autocoids, which are the types, means the names of lipid autocoids. And the last we'll see the action and functions of autocoid. And the most common lipid autocoid is prostaglandin. Okay guys, so we will start our discussion with the lipid autocoid, जो हम लोग तीन सब headings में देखेंगे. First, how the lipid autocoid is synthesized. Second, which are the types of lipid autocoids in the body. And third, what is the action and function of lipid autocoid, and most predominantly the prostaglandin. Okay. Now we will start with first, that is synthesis of lipid autocoid. Now the most important substrate which is present in the body to form the lipid autocoid is a phospholipid. Okay, it is a lipid which is forming your cell membrane, and that is called as the phospholipid. So guys, हम लोगों ने चालू कर दिया है हमारा synthesis of lipid autocoids. So the पहला substrate जो हमें चाहिए lipid autocoid के लिए वो क्या है guys? Yes, it is phospholipids. ठीक है. Now this phospholipids under the influence of the enzyme called as phospholipase A2, that is PLPA2 short form. ठीक है. It forms a 20 carbon compound, and that 20 carbon compound is called as arachidonic acid. So guys, it is a 20 carbon, मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, it is a 20 carbon 4 double bond containing compound. Why I am emphasizing it on, आप आगे देखेंगे. So this compound contains how many carbon? Yes guys, yes 20 carbon. कितने डबल बॉन्ड है? 4 डबल बॉन्ड है. अब क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड की दो पाथवेज में वो डिवाइड हो जाता है. पहला पाथवे एक एंजाइम के इन्फ्लुएंस में होगा, सेकेंड पाथवे एक एंजाइम के इन्फ्लुएंस में होगा. सो हम लोग ये पाथवे देखते हैं. नाउ दिस पाथवे, वन पाथवे, एक एंजाइम होता है, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोऑक्सीजनेज. कौन सा एंजाइम गाइस? यस, साइक्लोऑक्सीजनेज. सेकेंड एंजाइम है लॉक्स, दैट इज लाइपोऑक्सीजनेज. समझ रहे हो गाइस? सो एराकिडोनिक एसिड फॉर्म हो गया. अब वो दो पाथवे में डिवाइड हो जाएगा. पहला पाथवे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कॉल्ड साइक्लोऑक्सीजनेज, सेकंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड लाइपोऑक्सीजनेज. ठीक है. अब साइक्लोऑक्सीजनेज से क्या फॉर्म होगा? इट विल फॉर्म द मोस्ट प्रेडोमिनेट लिपिड ऑटोकॉइड, जिसका मैंने नाम लिया था, एंड दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन. एंड द फर्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन, मैं प्रोस्टाग्लैंडिन को हम लोग पीजी के रूप में एब्रिविएशन लिख सकते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन जो फॉर्म होंगे वो हैं PGG2 और PGH2. नाउ दिस बोथ आर अनस्टेबल कंपाउंड, so they have to be converted into a stable prostaglandin. अब वो कैसे होगा? देखो, अलग अलग ऑर्गन में we need different prostaglandin for their function. So for example, if it is a platelet, so platelets में जो prostaglandin फॉर्म होता है गाइस, उसका नाम है TXA2. मैं फुल फॉर्म लिखता हूं, it is called thromboxane A2. yes, ठीक है, समझ रहे हो? ओके. सेकेंड, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल में जो प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म होगा
उसका नाम है प्रोस्टासाइक्लिन। क्या नाम है? यस, प्रोस्टासाइक्लिन। उसको लिखते हैं हम लोग PGI2। ठीक है। और रिमेनिंग ऑर्गन्स में जो प्रोस्टाग्लैंडिन गाइस फॉर्म होंगे, दे आर द स्टेबल वंस, वेरी इंपॉर्टेंट, PGD2, PGE2, PGF2, like that। ठीक है। सो दिस इज इन अदर टिश्यूज, ऑर्गन्स। करेक्ट? अंडरस्टूड? ठीक है। सो थ्रू कॉक्स हमें क्या मिला? प्रोस्टाग्लैंडिन, विच इज योर फर्स्ट फॉस्फोलिपिड, विच इज योर फर्स्ट लिपिड ऑटोकॉइड। अब दिस प्रोस्टाग्लैंडिन, द फर्स्ट आर फॉर्म G2 and H2, दे आर अनस्टेबल। अब वो स्टेबल अलग अलग सेल, मतलब अलग अलग ऑर्गन में जहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन जैसा चाहिए वो फॉर्म करेंगे। ठीक है। अब लाइपोऑक्सीजनेस पे आ जाते हैं गाइस। लाइपोऑक्सीजनेस, इट विल फॉर्म लुकोट्राइन। कौन सा? लुकोट्राइन। ठीक है। अब लुकोट्राइन में यहां लिख रहा हूं वापस। लुकोट्राइन कहां से फॉर्म होगा गाइस? थ्रू लॉक्स पाथवे। अभी लुकोट्राइन गेट्स, इसको मैं एब्रिविएशन दे रहा हूं गाइस, LT। ठीक है। अब लुकोट्राइन फर्स्ट, इट विल फॉर्म लुकोट्राइन A4। ठीक है। नाउ दिस A4 will divide into leukotriene B4, leukotriene C4. अभी leukotriene C4 will form leukotriene D4 and leukotriene E4. ठीक है? Understood? ठीक है? So this is your phospholipid जो हमारे it got broken. This is your phospholipid जो in the presence of phospholipase A2 वो फॉर्म करता है कंपाउंड एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड विल अंडरगोस टू पाथवे, कॉक्स एंड लॉक्स, एंड कॉक्स एंड लॉक्स के थ्रू इट विल फॉर्म योर डिफरेंट लिपिड ऑटोकॉइड्स। ठीक है। नाउ गाइस, एक चीज याद रखना, ये जो जितने भी लिपिड ऑटोकॉइड फॉर्म हुए, चाहे वो प्रोस्टाग्लैंडिन हो, चाहे वो लुकोट्राइन हो, ठीक है, नाउ दे आल्सो कंटेन 20 कार्बन एटम। ठीक है। नाउ याद रखो, those compound or the lipid autocoid which contain 20 carbon atom and who are derived from arachidonic acid, they are also called, so lipid autocoid का मैं दूसरा नाम बता रहा हूं, they are also called as icosanoids। क्या बोलते हैं गाइस उनको? Icosanoids। Icosa means 20 carbon and noids means they are lipid derived, or they are the lipid compound, so they are 20 carbon lipid compound also called icosanoids। so which are the icosanoids we know? पहला प्रोस्टाग्लैंडिन है, दूसरा लुकोट्राइन्स है। These are the most important icosanoids or lipid autocoid। Understood? Okay, चलो अब हम लोग कहां जाते हैं? नेक्स्ट हमारा जो सब हेडिंग था, and that is the different function and action of prostaglandin। ठीक है। So guys, we have completed the synthesis of lipid autocoid। तो मैंने वापस हेडिंग दिया है lipid autocoid। Lipid autocoids are also called as icosanoids। क्यों बोला जाता है इनको icosanoids? Because they contain 20 कार्बन एटम। ठीक है गाइस, अभी हमने देखा था दो मेजर हमारे लिपिड ऑटोकॉइड फॉर्म हुए थे। पहला इज योर प्रोस्टाग्लैंडिन जो फॉर्म हुआ, कौन से पाथवे से गाइस? कॉक्स, दैट इज साइक्लोऑक्सीजनेस। और सेकंड कौन सा फॉर्म हुआ था? लुकोट्राइन, एंड दैट वाज थ्रू लॉक्स पाथवे। नाउ एक डिफरेंस और है गाइस, प्रोस्टाग्लैंडिन जब हमने एग्जांपल देखे थे, हमने देखा था, हमने लिखा था PGE2, PGI2, है ना, TA थ्रोम्बोक्सेन A2, है ना, हर जगह 2, सब जगह आ रहे थे 2। और जब हमने लुकोट्राइन्स गाइस लिखा था तो वहां क्या लिखा था? LTA4, LTB4, LTC4, LTD4। ठीक है। क्या डिफरेंस है इनमें? 2 और 4 क्यों आ रहे हैं गाइस? जस्ट रिमेंबर दैट आइकोसिनॉइड्स कहां से डिराइव हुआ? अरेकिडोनिक एसिड से, जो 20 कार्बन एटम जिसमें है और 4 डबल बॉन्ड है। तो 2 पाथवे में वो डिवाइड होता है, कॉक्स और लॉक्स। ठीक है। तब जब लॉक्स पाथवे में जाता है तो जो हमारे लिपिड ऑटोकॉइड फॉर्म है, विच इज लुकोट्राइन, दे विल रिटेन द 4 डबल बॉन्ड। सो दिस 4 रिप्रेजेंट्स द 4 डबल बॉन्ड। ठीक है। ओके। एंड यहां पे हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन में E2 ये सब है, मतलब यहां पे सिर्फ 2 डबल बॉन्ड होते हैं। सर 2 कहां चले गए? नाउ गाइस, इट इज साइक्लो। साइक्लो मींस देयर इज अ साइक्लिक रिंग, एंड यू नो साइक्लिक रिंग में वी हैव अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक है। सो वो डबल बॉन्ड
they will go in cycle. ठीक है, so we have only 2 double bond in prostaglandin while we have 4 double bond in leukotrienes. Understood? Okay, समझ गया? ठीक. Okay, अब हम लोग अपने नेक्स्ट सब हेडिंग पे आते हैं. क्या था? Action and function of different prostaglandins in the body. ठीक. Before starting the action of prostaglandin and the function of prostaglandin in different organs of the body, हम लोग ना लूकोट्राइन का भी थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं. लूकोट्राइन भी एक हमारा क्या है गाइस? यस, इट इज आल्सो लिपिड ऑटोकॉइड. अब लूकोट्राइन में हमने क्या क्या देखा है? LT-A4, LT-B4, है ना, ये हमने देखा. और LT-C4 से फॉर्म हुआ LT-D4 और LT-E4. Just remember guys, this both, that is leukotrienes, they are the very very important lipid autocoid. इसमें भी LT-A4 और B4 जो है, they are mainly responsible for the allergy through the inflammation. So they are one of the mediators of inflammation. So LT-A4 और LT-B4 जहां पे भी inflammation होगा, even they are also released. Now these three, they are responsible for bronchoconstriction. Bronchoconstriction. So bronchial muscle को क्या कर देते हैं? Constrict कर देते हैं. So they will do bronchoconstriction of the bronchi. करेक्ट. अभी क्यों मैं लिखा रहा हूं? बिकॉज समझो मैंने LT को इनहिबिट कर दिया थ्रू लॉक्स पाथवे. मैंने एक ऐसा ड्रग दिया जिसने लूकोट्राइन को फॉर्म होने से इनहिबिट कर दिया. तो ऐसी ड्रग को हम लोग कहां दे सकते हैं? क्या करेगा? देखो LT हमारा क्या कर रहा था? ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन. सो जो लूकोट्राइन एंटागोनिस्ट होगा वो क्या करेगा? ब्रोंको डायलेशन. सो लूकोट्राइन एंटागोनिस्ट आर गिवन इन ब्रोंकियल अस्थमा. एंड लाइक द एग्जांपल we have montelukast, we have zafirlukast. Don't worry guys, ये आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में और पढ़ोगे फिर से. So अभी एटलीस्ट नाम याद रखो कि लूकोट्राइन एंटागोनिस्ट दे दिया तो क्या होगा? देयर विल बी ब्रोंको डायलेशन. और अस्थमा का जो अटैक है, जो सिम्टम्स है, वो थोड़े मतलब जो एग्रेवेटेड सिम्टम है वो थोड़े कम हो जाएंगे. द पेशेंट विल फील बेटर. सो दिस आर योर लूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, दैट इज montelukast एंड zafirlukast. ठीक है, अंडरस्टूड. चलो अब हम लोग आ जाते हैं कहां पे? हमारे मेन लिपिड ऑटोकॉइड, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन एंड एक्शन ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. Now we'll start guys with action of prostaglandin with their function. ठीक है. और एक चीज मुझे बताना है guys कि हमने जो prostaglandin अभी देखे, करेक्ट, prostaglandin which we saw now, they all contain two double bond. ठीक है. So like PG, E2, F2, I2, PG, F2, है ना, they contain two double bonds, and such prostaglandin which contain two double bonds, they are actually the natural prostaglandin. Now at present scenario we also have a synthetic prostaglandin जो बहुत commonly यूज होते हैं. नाउ दे आर द सेम, दे हैव द सेम फंक्शन एज द नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन, बट वहां पे जो डबल बॉन्ड था वो एक और कम हो जाएगा. सो दे ऑल विल कंटेन वन डबल बॉन्ड. ठीक है. सो वी हैव PgE1, मोस्टली वी हैव PgE1. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दे आर कॉल्ड एज द सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन. And how to remember synthetic prostaglandins, since they are important at present clinical scenario, बहुत सारे conditions में भी use synthetic prostaglandin. ठीक है. So उसका नाम just remember FAB-M. F stands for fluprostenil. Because it is prostaglandin, ऐसे याद रखो. A for
it is alprostatic. P stands for papaverine and M for very common, it is misoprostol. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन तो हर जगह आप देख सकते हो, प्रोस्ट आएगा एक्सेप्ट द पापावेरिन. नाउ दिस आर द मेजर 4 synthetic prostaglandin. We have fluprostenol, we have alprostadil, we have papaverine and we have misoprostol. तो FAP-M is the mnemonic to remember synthetic prostaglandin guys. ठीक है, ओके. अब हम लोग आ जाते हैं, हमारा एक्शन क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन का ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स. गाइस हम लोग याद रखें एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ऑन डिफरेंट ऑर्गन. अगेन देयर इज अ निमोनिक एंड दैट इज कॉल्ड प्लाइबर. जस्ट रिमेंबर प्लाइबर. मैं यहां लिख देता हूं प्लाइबर. अब एक एक वर्ड हमें फंक्शंस बताएगा और कौन सी लोकेशन है कि भाई ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो बॉडी में कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होगा वो भी दिखाएगा. तो हमारा पहला वर्ड क्या है निमोनिक में, डिस्प्लाई, पी. नाउ पी में याद रखो 2 वर्ड है गाइस. पहला इज प्लेटलेट. सो इट इज प्रेजेंट, वी हैव द प्रोस्टाग्लैंडिन व्हिच इज प्रेजेंट इन प्लेटलेट्स. याद रखो 2 प्रोस्टाग्लैंडिन है जो प्लेटलेट में मेनली प्रेजेंट होते हैं. पहला वी हैव थ्रोम्बोक्सिन A2. क्या नाम था इसका, थ्रोम्बोक्सिन A2. इसका क्या फंक्शन है गाइस, जस्ट रिमेंबर इट्स वेरी इजी. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट. कैसे याद रखोगे, इट इज A2 एंड A फॉर एग्रीगेशन. तो आप इससे याद रखना है थ्रोम्बोक्सिन A2 में देयर इज A एंड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट. Okay, now second is PGI2. अब PGI2 is guys क्या बोलते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन. now इसका क्या फंक्शन है, देखो I से क्या होता है, ये एग्रीगेशन करता है तो ये क्या करेगा, it will inhibit, so it will inhibit the aggregation of platelet. ठीक है, सो कैसे याद रखना है, वी हैव आई फॉर इनहिबिशन. ठीक है, अंडरस्टूड. ओके, तो हमें पहला पी समझ गया, प्लेटलेट्स. ठीक है, अब सेकेंड पी पे आते हैं. सेकेंड पी पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. सर कौन सी कंडीशन है, यस इट इज रिलेटेड टू हार्ट. सो याद रखो सेकेंड लोकेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इज ऑन द हार्ट. अब ये कंडीशन क्या है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, उसको समझने के लिए आपको पहले समझना है कि डक्टस आर्टेरियोसिस क्या है. ठीक है, अब जस्ट रिमेंबर दैट ड्यूरिंग इंट्रायूटेरल लाइफ फॉर 9 मंथ्स जो बेबी को सारा न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, इट इज थ्रू दी मदर्स ब्लड. करेक्ट, ओके. नाउ उस समय बेबी का हार्ट, देयर इज 4 चेंबर इन द हार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. ठीक है, अब right ventricle से हमारा क्या अराइज होगा, yes we'll get pulmonary artery. So pulmonary artery and left ventricle से क्या अराइज होगा, the biggest vessel that is called as राइट वेंट्रिकल से क्या अराइज होगा, वी हैव पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से देयर विल बी आयोटा. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज आयोटा, द रेड वन एंड द ब्लैक वन इज पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, नाउ ड्यूरिंग इंट्रायूटेरल लाइफ सिंस बेबी का जो लंग है इट इज इमैच्योर, उसमें एयर ही नहीं है बिकॉज दे आर नॉट रेस्पायरिंग, बट ब्लड फ्लो तो हो ही रहा होगा, तो बहुत हेवी प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो हो रहा होगा इन आयोटा एंड इन पल्मोनरी आर्टरी. करेक्ट, ना इतना ज्यादा प्रेशर रहता है बिकॉज बेबी का जो लंग है वो क्या नहीं कर रहा है, रेस्पायर नहीं कर रहा है, सो देयर इज लॉट्स ऑफ प्रेशर. सो इसीलिए भगवान ने क्या बनाया है, बिटवीन आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी एक पैसेज बना दिया गया है. देयर इज अ पैसेज बिटवीन pulmonary artery and the aorta so that the pressure is reduced and this is called as the
ductus arteriosus. This is called as, guys, yes, ductus arteriosus. So during intrauterine life, since the baby's lung is not respiring, there has to be a connection between pulmonary artery and the aorta, and that is called ductus arteriosus. Now ये हो गया ductus arteriosus. Now जैसे अब डिलीवरी होती है, बेबी को क्या करना है, रेस्पायर करना है. तो जैसे ही बेबी रेस्पायर करना चालू करता है, नाउ व्हाट हैपेंस, देयर हैज टू बी, इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, प्रेशर थोड़ा कम हुआ है बिकॉज ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस. ठीक है, जैसी डिलीवरी हुई, अब बेबी हैज टू रेस्पायर. ठीक, अब ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस है, ठीक है, बना हुआ है ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ. अब जैसी बेबी डिलीवर हुआ, नाउ दे विल रेस्पायर. नाउ दिस हैज टू क्लोज. अगर वो क्लोज नहीं होगा, सो द ब्लड विल मिक्स. आयोटा का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी का आयोटा में. नाउ दिस ductus arteriosus will close. So within 24 hours to 48 hours, this passage, that is ductus arteriosus, get closed. समझ गया guys? Within 24 to 36 या 48 hours maximum, ये ductus arteriosus close हो जाएगा डिलीवरी के बाद. अगर नहीं क्लोज हुआ, then it is called as patent ductus arteriosus or PDA. What is PDA, guys? It is patent ductus arteriosus. अगर patent ductus arteriosus close नहीं हुआ within 24 to 48 hours or 36 hours, then that condition is PDA. ठीक है, अभी हमने बोला guys कि there is a ductus arteriosus during the intrauterine life. पेटेंट मतलब एक्टिव रहता है. अब ये एक्टिव जो है, मतलब जो ओपन एक पैसेज बना है, वो कौन मेंटेन करता है? सो दिस मेंटेनेंस ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस, रिमेंबर डक्टस आर्टेरियोसिस जो 9 महीने तक है ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ इन बेबी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2. It is because of prostaglandin E2 this ductus arteriosus is maintaining, मतलब 9 महीने तक वो मेंटेन है because of prostaglandin. बट जैसे ही डिलीवरी होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाता है और डक्टस आर्टेरियोसिस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है. अगर नहीं क्लोज हुआ, दैट कंडीशन इज कॉल्ड पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. ठीक है, अंडरस्टूड दिस मच? ओके, अब गाइस समझो, डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज ही नहीं हुआ, डिलीवरी हुई, उसके बाद भी 24 से 36 घंटे हो गए, इट हैज नॉट गॉट क्लोज, दैट इज कॉल्ड पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. तो अब क्या करोगे? यू हैव टू गिव सम मेडिसिन्स, करेक्ट? ओके, अब हमें पता है द प्रोस्टाग्लैंडिन इज द वन व्हिच इज मेंटेनिंग द डक्टस आर्टेरियोसिस ओपन, मतलब कनेक्टेड, वो दो पैसेज बनाए रहता है बिटवीन आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी. बट जैसे डिलीवरी होता है, वो कम हो जाता है एंड इट गेट्स क्लोज. अब तो हमारा मेन ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर हमारा डक्टस आर्टेरियोसिस पेटेंट है, तो मैं क्या करूंगा? आई विल गिव अ ड्रग जो किसको कम कर दे? यस, प्रोस्टाग्लैंडिन को ही कम कर दे, बिकॉज उसके वजह से तो डक्टस आर्टेरियोसिस था. अब यही अगर कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डक्टस आर्टेरियोसिस जो पेटेंट था, वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा. सो टेल मी विच ड्रग यू विल गिव? यस, यू विल गिव अ ड्रग जो कौन से पाथवे को इनहिबिट करेगा गाइस? यस, इट विल इनहिबिट कॉक्स पाथवे. सो मैं कौन सा ड्रग दूंगा? कॉक्स इनहिबिटर. कौन सा ड्रग दूंगा? कॉक्स इनहिबिटर. सो जो कॉक्स पाथवे को इनहिबिट करे वो कौन है? कॉक्स inhibitor. So I will give COX inhibitor, and the drugs which we can give for patent ductus arteriosus, they are also called NSAIDs. क्या बोलते हैं उनको? NSAIDs, that is non-steroidal anti-inflammatory drug. Non-steroidal anti-inflammatory drug. And the drugs are, just remember, AI. It is AI square, you can say. Now A stands for aspirin. Now दो I है, पहला I, second I. First I is ibuprofen. Now तीनों क्या है? Non-steroidal anti-inflammatory.
ठीक है, वो कौन से पाथवे को इनहिबिट करेंगे, कॉक्स पाथवे को, तो क्या फॉर्म नहीं होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म नहीं होगा तो हमारा जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस पेटेंट है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो आइबुप्रोफेन एंड थर्ड इज इंडोमिथासिन। Out of these three, the drug of choice for PDA in India it is ibuprofen. So in India the drug of choice is ibuprofen, but in Western countries still the drug of choice is indomethacin. If both are not there, we can use aspirin also. So you understood? So हमारा पहला निमोनिक का P है, प्लाइवर का P, तो फर्स्ट इज प्लेटलेट, सेकेंड इज PDA, ठीक है। हम लोग अब सेकेंड पे आते हैं, दैट इज L। व्हाट इज L? देखते हैं। तो गाइस L पे हम लोग आ जाते हैं। L इज लेबर। लेबर मतलब कहां लेबर होगा, इट इज मींस कहां पे होगा हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट, यूट्रस में। सो यूट्रस इज द सेकेंड लोकेशन ऑफ आवर प्रोस्टाग्लैंडिन। Now for example, this is uterus. Now remember, this is the upper segment of uterus, this is the lower segment of uterus. Now just remember, prostaglandin E2 and prostaglandin I2, ठीक है। So they will contract upper segment of uterus. कौन कौन guys? Yes, it is prostaglandin E2 and prostaglandin I2 क्या करते हैं, they contract upper segment of uterus, ठीक। और सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है it relaxes lower part of uterus। ओके गाइस, अब मुझे बताओ अपर पार्ट और अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और लोअर सेगमेंट को रिलैक्स कर रहा है। ऐसा चीज कब होता है, व्हेन वी नीड टू हैव लेबर, ठीक है। हमें जब डिलीवरी करवानी है, वी हैव टू इंड्यूस द लेबर, सो अपर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लोअर पार्ट रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। सो द फर्स्ट यूज ऑफ हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन इन यूट्रस इज, जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट use is induction of abortion। अरे सर आपने पहले बोला लेबर, अब आपने लिख दिया इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन। यस, वी कैन गिव योर प्रोस्टाग्लैंडिन इन लेबर और इंडक्शन ऑफ डिलीवरी, बट सिंस इट हैज सम एडवर्स इफेक्ट्स, it is not a drug of choice for labor induction. The drug of choice for labor induction is always and always oxytocin. तो पहला इंडिकेशन में हम ले रहे हैं इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन, उसमें भी वही होता है ना, अपर सेगमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना है, लोअर सेगमेंट को रिलैक्स करना है। सो फॉर इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन वी कैन यूज our prostaglandin is a first line drug, and the most common drug is PGE2 analog, and that is misoprostol. It is PGE1 E2 जो भी बोलो दोनों सेम है, misoprostol. So misoprostol is the one which we can use for induction of abortion. ठीक है। अब एक और चीज, अब ध्यान से सुनना, डिलीवरी हो गई, चलो बेबी हैज कम आउट, उसके बाद क्या आएगा, प्लासेंटा भी बाहर आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान दो, प्लासेंटा बाहर आने के बाद अपर पार्ट जो हमारा अपर सेगमेंट है, सिंस ऑक्सीटोसिन अभी भी काम कर रहा है, बिकॉज स्टिल देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डिलीवरी गोइंग ऑन, इट इज, ठीक है। सो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वेसल जो यहाँ पे है अपर पार्ट में, वो क्या होता है, एक्सपोज हो जाते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। सो दिस ब्लीडिंग व्हिच अकर्स आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा एंड द फीटस इज कॉल्ड पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या बोलते हैं गाइस, इट इज कॉल्ड पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। सो हमें क्या करना है, वी हैव टू ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करना है, नीचे रिलैक्सेशन करना है, ठीक है। अब पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए वी हैव टू गिव अ ड्रग जो वैसोकंस्ट्रिक्ट कर दे ब्लड वेसल्स को, एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन व्हिच वी यूज इज कॉल्ड एज PGF2, and the
नेम इज इट इज कार्बोप्रोस्ट। ठीक है, सो पोस्टमार्टम हेमरेज में वी नीड टू वैसोकंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम हो जाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, सो ये हमारा दूसरा यूज हो गया। दिस इज द फर्स्ट यूज, इंडक्शन ऑफ लेबर, एंड सेकेंड इज इन पीपीएच। नाउ थर्ड क्या है? ठीक है, अब हमें पता है गाइस कि अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लोअर सेगमेंट रिलैक्स होना चाहिए। अब रिलैक्सेशन लोअर सेगमेंट, द मोस्ट कॉमन पार्ट इन द lower uterine part is called cervix. So we know there is a cervix. So labor में क्या होना चाहिए? cervix soft होना चाहिए. So there is relaxation of cervix. कैसे रिलैक्सेशन होगा cervix का? By breakdown of collagen. Please remember, breakdown of collagen. So there is breakdown of collagen, because of which there is softening of cervix, और जिसके वजह से cervix dilate होगा and delivery में वो help करेगा. This is done by again prostaglandin. So again prostaglandin PGE2, what it does? क्या करता है वो? It will break down the collagen, जिसके वजह से जो हमारा सॉफ्टनिंग है सर्विक्स का वो बढ़ जाएगा. सो इट इज रिलैक्सेशन ऑफ सर्विक्स हो जाएगा एंड द सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स विल इंक्रीज. दिस इज कॉल्ड एज सर्वाइकल राइपनिंग. क्या बोलते हैं गाइस? दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल राइपनिंग. तो याद रखो, 3 फंक्शन है यूट्रस में हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन के. पहला, इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन, बिकॉज वो अपर पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है, लोअर पार्ट ऑफ को यूट्रस के रिलैक्स करता है, जो वी ऑल्सो नीड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ दी, मतलब जो कंसीव्ड प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना है ड्यूरिंग एबॉर्शन. ठीक है. सेकेंड, पोस्टपार्टम हेमरेज में, बिकॉज वी नीड टू वैसोकंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल, जिसकी वजह से ब्लीडिंग क्या हो जाए? कम हो जाए. एंड again we can use PGF2, that is carboprost. Third indication, cervix is very important part in the uterus. So during delivery सर्विक्स का डायलेटेशन, उसकी सॉफ्टनिंग होनी जरूरी है. सॉफ्टनिंग कैसे होगी? बाय ब्रेकडाउन ऑफ कोलाजन, एंड दैट इज आल्सो डन बाय प्रोस्टाग्लैंडिन. सो प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प्स इन सर्वाइकल राइपनिंग, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, जिसके वजह से डिलीवरी आसानी से हो जाए. सो ये 3 फंक्शन है यूट्रस में. प्लीज रिमेंबर, प्लीज नोट इट डाउन. ठीक, ओके. हम लोग थर्ड हमारे वर्ड पे आ जाते हैं निमोनिक, एंड दैट इज आई. और थर्ड इज आई. Now I means, just remember, inhibit. What it inhibit? It inhibits proton pump. कहाँ होता है proton pump? In stomach. तो we can say हमारा third location guys कहाँ है? Yes, so prostaglandin is also present in stomach, जो वहां पे भी कुछ काम कर रहा हो. तो पहला काम ये करता है, inhibit proton pump. Second, it increases formation of mucus and bicarbonate. Third, it vasodilate. मतलब जो हमारे स्टमक में ब्लड वेसल्स हैं उसको ये क्या करता है? वैसोडाइलेशन करता है, जिसकी वजह से इट इंक्रीजेस म्यूकोजल ब्लड फ्लो इन स्टमक. मतलब इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ये 3 जो काम कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है? इट इनहिबिट्स फर्स्ट प्रोटॉन पंप, सेकंड इट इंक्रीजेस म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट इन द स्टमक, एंड थर्ड इट कॉजेस वैसोडाइलेशन, जिसकी वजह से म्यूकोजल ब्लड फ्लो इन स्टमक बढ़ जाता है. तो इन तीनों की वजह से इट इज प्रोटेक्टिंग द स्टमक. इट इज प्रोटेक्टिंग द स्टमक. किससे? बाय मोर ऑफ एसिड. अगर मोर ऑफ एसिड होगा, स्टमक में ज्यादा सीक्रेट होने लगे, तो क्या होगा? इट विल कॉज पेप्टिक अल्सर डिसीज. व्हाट इट विल कॉज? पेप्टिक अल्सर डिसीज. तो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन बाय डूइंग दिस 3 वर्क, देखो प्रोटॉन पंप भी अगर इनहिबिट हो जाएंगे तो HCl सीक्रेशन क्या हो जाएगा? इट विल डिक्रीज HCl.
ठीक है। सो सेकेंड, म्यूकस एंड कार्बोनेट अगर बढ़ने लगेंगे तो क्या होगा, स्टमक के एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाएगी, तो वो HCl से उसकी रक्षा करेगी। और अगर ब्लड वेसल वैसोडाइलेट हो जाएंगे तो जितना ज्यादा ब्लड फ्लो स्टमक को मिलेगा उतना ज्यादा प्रोटेक्शन होगा उसका। यू अंडरस्टूड। तो ये तीन के वजह से, ये तीन काम करने के वजह से हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो स्टमक को क्या होने से बचाता है, स्टमक में अल्सर होने से बचाता है। दैट डिसीज इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर डिसीज। ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई अगर पेप्टिक अल्सर डिसीज हुआ है पेशेंट को तो हम लोग क्या दे सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं। यस, बट द ड्रग ऑफ चॉइस, यहां पे भी भाई है, ड्रग ऑफ चॉइस इज नॉट प्रोस्टाग्लैंडिन, इट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। क्या है गाइस? यस, वेरी गुड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, PPI। आप पढ़ोगे गाइस, डोंट वरी, इन GIT PPI। चलो मैं एग्जांपल देता हूं। सब लोग ने कभी ना कभी पैंटोप्रोजोल खाया होगा, ओमेप्रोजोल, पैंडी, ये सब नाम से सुना है ना, ऑल प्रोजोल, सो पैंटोप्रोजोल। गाइस ये ड्रग ऑफ चॉइस क्यों है? बिकॉज वो ना प्रोटॉन पंप को ही इनहिबिट कर देता है, इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है, तो कुछ दिन तक HCl सीक्रेट ही नहीं होता है, hence it is a drug of choice. But we can also give prostaglandin. We can also give prostaglandin in peptic ulcer disease. और खास करके कौन से पेप्टिक अल्सर में हम प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं? अब ध्यान से सुनना, प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म कैसे हुआ? एराकिडोनिक से कॉक्स पाथवे के थ्रू। अगर समझो कोई पेशेंट कॉक्स इनहिबिटर ले रहा होगा, लाइक एस्पिरिन, डिस्प्रिन, लॉन्ग टर्म ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को कम कर रहा है, तो स्टमक का जो प्रोटेक्शन हो रहा था वो क्या होगा, कम हो जाएगा। सो क्या होगा, अगर एस्पिरिन ले रहा है, एनसेड ले रहा है, सो इट विल कॉज NSAID induced peptic ulcer. You understood guys? So NSAID induced peptic ulcer के लिए the most specific drug कौन सा देना होगा? It is prostaglandin. Correct? आया ना? Yes, but the drug of choice will always be PPI. Because guys PPI प्रोटॉन को ही खत्म करा पंप को, so it is always the drug of choice. ठीक? So we understood I also, I मतलब inhibit, ठीक है, कहां पे, स्टमक में सब कुछ इनहिबिट कर रहा है मेरे प्रोटॉन पंप को, ठीक है। Okay, so guys आ जाते हैं फोर्थ हमारे फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन में, दैट इज B. Now B is bronchi. ब्रोंकाई, अब ब्रोंकाई में क्या कर रहा है, नाउ यू नो ब्रोंकस, अब ये यहां क्या करता है, इट ब्रोंकोडाइलेट, ठीक है, तो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रोंकोडाइलेशन, ठीक है। सो इट डज ब्रोंकोडाइलेशन, ऑल्सो इन ब्रोंकस it does vasodilation. Blood vessel of the pulmonary area में वो क्या कर रहा है, it will vasodilate the blood vessel. Now अब ये दोनों फंक्शन जो हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन के इन दी ब्रोंकस, ठीक है, ये कहां पे हमें काम आएंगे, ब्रोंकस का रिलैक्सेशन और ब्लड जो हमारा ब्लड वेसल है उसका डायलिटेशन। नाउ दिस विल कम this will help in a very important condition of lung, and that is called as pulmonary hypertension. So याद रखो guys, हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन is very important in pulmonary hypertension, ठीक है, and that is वो भी कौन सा, PGI2, that is iloprost. So iloprost can be used in pulmonary hypertension. क्यों? Because वो vasodilation करवाता है, ठीक है, और स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करवाता है, ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है, जिसके वजह से द प्रेशर ऑन द लंग्स विल डिक्रीज, द कंजेशन विल डिक्रीज, द ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज, सो द पेशेंट विल हैव सिम्पटोमैटिक इंप्रूवमेंट इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन. सो दैट इज बी गाइस, अंडरस्टूड, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज ई. व्हाट इज ई इन प्लाइबर? नाउ ई गाइस इज very important condition in reproductive male, and that is erectile dysfunction. It's very important. Okay, now erectile dysfunction. Now what is the role of prostaglandin? You know prostaglandin क्या करता है, it increases or it vasodilate the blood vessel.
वैसोडाइलेशन काम है, स्मूथ मसल क्या हो जाएगी, उससे रिलैक्स हो जाएगी। तो क्या होगा, इट विल इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन द पेनिस, thereby what will happen, erectile dysfunction, the condition will improve, there will be improvement in erectile dysfunction। ठीक है, सो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करा रहा है, यू नो इट इज अ वैसोडाइलेटर, तो ब्लड वेसल को वैसोडाइलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेनाइल एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होगा। अगर आपने OMG2 मूवी देखी थी, उसमें पंकज त्रिपाठी का जो सुपुत्र था, उसने इसके स्कूल में बच्चे उसको चिढ़ा रहे थे, ठीक है, देन व्हाट ही टुक अ ड्रग। कौन सा ड्रग है हम लोग देखते, इट वाज नॉट प्रोस्टाग्लैंडिन एक्चुअली, बट वो उसी से रिलेटेड ड्रग है। ठीक है, अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन में गाइस द ड्रग ऑफ चॉइस इज नॉट प्रोस्टाग्लैंडिन, इट हेल्प्स, बट द ड्रग ऑफ चॉइस इज फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर। क्या है PDE5, क्या है गाइस, इट इज फॉस्फोडाइस्टरेज 5। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इट इज फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर क्या करता है गाइस, सेम चीज, फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इट विल वैसोडाइलेट द ब्लड वेसल, वैसोडाइलेशन कर देगा ब्लड वेसल का, जिसके वजह से क्या होगा, स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएगी and the blood flow will increase। ठीक है, and the drug of choice is PDE5 inhibitors। Now which are the PDE5 inhibitors, just remember the mnemonic PDE5 inhibitor, this sign is I'm writing for inhibitor, just remember supraventricular tachycardia, SVTA, supraventricular tachycardia, this is tachycardia। ठीक है ना, S stands for sildenafil, ठीक है, V stands for vardenafil। फिल क्या फिल कर रहा है, कहां फिल चाहिए, ब्लड फ्लो कहां बढ़ाना है, यस इन द पेनाइल रीजन, सो फिल कर रहा है ब्लड में, कैसे, बाय वैसोडाइलेटिंग द ब्लड वेसल, जिसके से स्मूथ मसल रिलैक्स हो रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ जा रहा है, तो जो कंडीशन है वो इंप्रूव हो जा रही है। T फॉर tadalafil and A for avanafil, तो सबका सफिक्स में आप देखोगे इट इज फिल, ब्लड फ्लो बढ़ जा रहा है। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन ड्रग जो उसने यूज किया था, अगर मैंने अभी बोला OMG2 आपने देखी होगी, sildenafil, वेरी कॉमनली यूज्ड एज अ ब्रांड नेम इज Viagra। ठीक है, सो इस नाम से मिलता है। व्हाट इज द डोज ऑफ sildenafil, जस्ट रिमेंबर sildenafil का डोज इज गाइस, tablet sildenafil 50 mg to be taken 1 hour before sexual activity, because the patient is suffering from this condition, so he need to improve it, तो 50 mg 1 घंटे पहले लेना है। अंडरस्टूड, तो दिस इज SVTA। अंडरस्टूड, सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कौन से ड्रग दे जाते हैं, वी कैन गिव प्रोस्टाग्लैंडिन, बट द ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑलवेज फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर। समझ गया, सो वी अंडरस्टूड द E also of fiber। अब हम लोग लास्ट वर्ड में जाते हैं, दैट इज R। E हम कहां समझ गए अभी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब पेनिस में इट इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो, सो कंडीशन इंप्रूव करता है। एक और E है, और एक जगह प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होता है और काम करता है, दैट इज I। नाउ I में प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, जस्ट रिमेंबर देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड ग्लूकोमा। नाउ ग्लूकोमा क्या होता है, इट इज द डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व। ठीक है, क्यों हो रहा है, बिकॉज जिसके वजह से, सॉरी, इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व, because of which there is increased intraocular pressure, जो आई प्रेशर वो बढ़ने लग जाता है, तो पेशेंट को डिफरेंट सिम्टम्स आने लगते हैं। अब ये क्यों होता है, ग्लूकोमा 2 रीजन से याद रखो ना। आईज में प्रेशर मेंटेन करने के लिए वी हैव अ फ्लूइड, ठीक है, जैसे ब्रेन में वी हैव द फ्लूइड कॉल्ड CSF, सिमिलरली आंख में एक फ्लूइड होती है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्वस ह्यूमर। क्या वो बोलते हैं उसको, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब अगर एक्वस ह्यूमर बढ़ गया, ज्यादा सिंथेसाइज होने लगा, तो भी प्रेशर बढ़ेगा, और सेकेंड ड्रेनेज उसकी कम है तो भी होने लगेगा। यस और नो, ड्रेनेज कम है तो मतलब बाहर ही नहीं निकल रहा है, ड्रेन ही नहीं हो रहा है, तो भी क्या होने लगेगा, प्रेशर बढ़ेगा आंख का, एंड देयर विल बी ग्लूकोमा। तो हमारा मेन मोटो क्या है ग्लूकोमा ट्रीटमेंट का, पहला, या आप सिक्रेशन ही कम कर दो,
मतलब प्रोडक्शन ही कम कर दो एक्वस ह्यूमर का, बनाओ ही मत, और दूसरा या ड्रेनेज बढ़ा दो, हाँ या ना, यस गुड, ठीक है, तो ड्रेनेज बढ़ा दो या सिक्रेशन कम कर दो। तो हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना गाइस, वो क्या करता है, इट इंक्रीजेस द ड्रेनेज, ठीक है, जस्ट रिमेंबर इट विल इंक्रीज ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, प्लीज रिमेंबर हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है, इट इंक्रीजेस द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, जिसकी वजह से क्या होगा, pressure of the eyes will decrease, ठीक है, and the condition will improve, and the prostaglandin जो हम लोग यूज करते हैं, it is a PGF2 alpha analog, and the drug is, most common drug is latanoprost. Prost means prostaglandin. And also one more point guys, it is a drug of choice, please note it down, drug of choice for primary ओपन एंगल ग्लूकोमा। डोंट वरी गाइस, ग्लूकोमा जब मैं पढ़ाऊंगा एएनएस में तो उस समय ग्लूकोमा और अच्छे से समझेगा। अभी बस ये आपको याद रखना है दैट प्रोस्टाग्लैंडिन इज यूज्ड इन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा एज ड्रग ऑफ चॉइस बिकॉज इट इंक्रीजेस ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। अंडरस्टूड? ठीक है, सो ये ई भी खत्म। हम लोग आ जाते हैं आर पे। नाउ गाइस इन प्लाइबर द आर दैट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, it is renal, मतलब it is present in kidney, please remember, ठीक है, and the most important one who are present is PGE2 and PGI2। अभी क्या करते हैं guys, these two what they do, they increases or they cause vasodilation, so vasodilation of renal vessel की वजह से क्या होगा, the blood flow will increase, and if the blood flow to the kidney will increase तो क्या बढ़ जाएगा guys, glomerular filtration rate, it will increase GFR, so PGE2 and PGI2 क्या करते हैं किडनी में, it vasodilate, you know प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है mainly vasodilation, so vasodilation कर रहे हैं, so blood flow बढ़ेगा किडनी में, अगर blood flow बढ़ेगा किडनी में तो फिल्ट्रेशन रेट भी ज्यादा बढ़ेगा, मतलब इट इज गुड टू द किडनी, यस और नो, यस इट इज गुड टू द किडनी। अब समझो मैंने क्या दे दिया, कॉक्स इनहिबिटर, तो क्या होगा, इट विल डिक्रीज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, तो जो वैसोडाइलेशन हो रहा था, ब्लड फ्लो हो रहा था, वो कम हो जाएगा और जीएफआर कम हो जाएगा, मतलब देयर विल बी रीनल डैमेज। तो जो कॉक्स इनहिबिटर है गाइस, एनसेड्स, कॉक्स इनहिबिटर व्हाट, दे आर contraindicated in renal failure, they should not be given in renal failure because वो condition को क्या और कर देंगे, worse कर देंगे, because they will decrease the blood flow to the kidney and they will decrease GFR. So COX inhibitors are not to be given in renal failure patient. Understood? So this is all about your prostaglandin, how it is synthesized, which are the different prostaglandins in the body, उनके अलग अलग क्या functions हैं। Understood? I hope you have understood this also. तो guys हम लोग ने देखो प्रोस्टाग्लैंडिन के 6 एक्शंस देख लिए, बायोनिमोनिक दैट इज प्लाइबर, PLI BER, अलग अलग ऑर्गन्स में जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट एक चीज एक्स्ट्रा रह गई, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन एक फंक्शन है दैट इज अ जनरल फंक्शन। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उस ड्रग का इस पे बहुत बड़ा एक्शन होता है, ठीक है। एंड द जनरल एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इज दैट इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर। So in hypothalamus, that is in brain, it increases the temperature, thereby it causes fever, ठीक है। Second very important, it is very sensitive to nerve ending, so pain मतलब second it causes pain because it is very sensitized to the nerve ending, so it causes pain, as well as it is also responsible for inflammation. So याद रखो guys, अदर देन दिस 6 फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये 3 जनरल फंक्शन है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर, इट इंक्रीजेस टेम्परेचर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन, ठीक है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लेमेशन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या बोले थे, पढ़ेंगे कॉक्स इनहिबिटर्स, तो वो क्या करेंगे, तीनों पाथवे को इनहिबिट कर देंगे, सो फीवर कम हो जाएगा, सो इट इज एंटीपायरेटिक, पेन कम हो गया, सो इट इज एनाल्जेसिक, और इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, इट इज
anti-inflammatory. So NSAIDs are having this three properties: analgesic, antipyretic, anti-inflammatory. So ये हमारा मेन जनरल फंक्शन था प्रोस्टाग्लैंडिन का अदर देन दिस. ठीक है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, दैट इज द लिपिड ऑटोकॉइन. ठीक. सो आई एम एंडिंग माय लेक्चर ऑन दिस. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर अभी हमने क्या बोला, विल स्टार्ट विद द कॉक्स इनहिबिटर, दैट इज द NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग. ठीक है. सो कीप लविंग गाइस, कीप लर्निंग गाइस. So thank you so much. We will meet in the next lecture. Thank you.